Student, let's discuss few concepts of generalized concept on equations of motion. ठीक है. Let's say one concept. For example, right, students, let a particle starts from rest, students, right? If a particle starts from rest, if a particle starts from rest and moves with uniform acceleration a, and moves with uniform acceleration a, such that it travels a distance Sm and Sn in mth and nth second, in mth and nth second, correct? In mth and nth second, then Sn is equal to, students, how much? Sn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1, correct? Yes or no? But body is starting from rest. It is given starts from rest means u is equal to 0. Yes or no? So we can write Sn is equal to 0 plus a by 2 into 2n minus 1. Yes or no? Because u is equal to 0, body starts from rest, that's why. And let that is equation 1, correct? Like that in nth second, Sm is equal to how much? 0 plus a by 2 into 2m minus 1. Yes or no? That is equation 2. If I want to I will subtract equation 2 from equation 1. Let me to subtract. Okay. Then what I will get? If I'll subtract, let's subtract equation 2, sorry, equation 2 from equation 1. Then what you will get? See, students, if I'll subtract Sm minus Sn, correct, will be equal to how much? A by 2 whole into 2m minus 1 minus a by 2 into 2n minus 1. Yes or no, students? Yes. And I can take a common and I can multiply 2 also, then open the bracket. You open, solve, you take a to one side, then you will get acceleration as Sn minus Sm divided by n minus m. It's a format of question. Means if any question you get, the concept will be repeated. Then in an exam, we are not going to solve this much, you know. For one question, you will be getting some minutes. Yes or no? And will not take more than 1 or 2 minutes to solve few questions. So that's why I told you, because you have to remember so many steps in mind. You have to do so many steps, and you have to remember something. Because after solving, this formula will be applicable in many of the questions. This concept, just keep in mind, this is a way. Like this, I will be saying some concept. Achha, just note it. Then I will say another concept. Just note it. Let student in the same question, type of question, it is given. Particle starts from rest. Okay. Let's write. Particle starts from rest. Particle starts from rest. Okay. And moves along a straight line. And moves along a straight line. And moves along a straight line. With uniform acceleration. Move along a straight line with uniform acceleration. Okay. If s is the distance traveled, right? If s is the distance traveled, if s is the distance traveled, correct? In n second, okay. s distance travel किया उसने n second पे, ठीक है, correct. And Sn is the distance traveled. Sn is the distance traveled in the n second. In the n second.
then Sn by S. Okay, students, Sn means how much? Body starts from rest means U0, yes or no? Then Sn is equal to how much? A by 2 into 2n minus 1, na? Yes or no? And S is equal to how much? Ut plus half it square, correct? U is 0, so it will be half an square, na? Getting my point or not? Yes. Yes, sir. So a cancel by a by 2, or down also a by 2, so it will be how much? 2n minus 1 by n square, na? So that means if you know n only and you know Sn, you can find S. It's simple, the formula is what? Yes, sir. By S is equal to 2n minus 1 by n square, correct? Yes or no? This is another formula, just keep in mind. So note it. So next, let's go to midpoint velocity. Okay, midpoint velocity. Okay, midpoint velocity means, let a body students here starts from here. This is x point. उसने u velocity से start किया, correct? और उसने y तक चला गया, है कि नहीं? And जब y के पास उसने पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी v हो गया था. और ये है मिड पॉइंट. मिड पॉइंट मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस उतना ही है. दिस इज द मिड पॉइंट. क्या है ये? मिड पॉइंट है ना? तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस मिड पॉइंट इफ द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए. ठीक है, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. हर जगह पे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा बॉडी, तभी जाके हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डाल सकते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि इसके बाद में वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ कैसे उस टाइप के प्रॉब्लम्स को डील किया जाएगा वो भी मैं बताऊंगा. बट अभी ये यहाँ पर कैसे उस मिड पॉइंट वेलोसिटी हम निकालेंगे. लेट ये v1 है, करेक्ट? हाउ टू फाइंड दैट v1. ठीक है फ्रेंड्स, देखो अगर मैं टोटल जर्नी की बात करूं, ठीक है, नहीं तो फिर अगर मैं यहाँ तक पहले u to v की बात करूं मैं, सो इट विल बी हाउ मच. सी जस्ट, अगर मैं u to v अगर इस पार्ट की बात करूं मैं, तो यू नो देयर इज इक्वेशन v square minus u square is equal to 2s, करेक्ट? सो यहाँ से यहाँ तक के मैं Yes, sir. वो इक्वेशन डाल सकता हूँ, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ v1 का स्क्वायर minus u square is equal to 2as. Can I write? अगर यहीं से मैं एक्सेलरेशन निकालूं, so that will be how much? v1 square minus u square by 2s, करेक्ट है ना? पहला आधा मोशन की. Yes. अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं, अभी मैं अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना है? v1. यहाँ पर वेलोसिटी कितना है? v. ये डिस्टेंस भी s है और ये भी एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. तो यहाँ पर अगर मैं डालूं इस पार्ट ऑफ द मोशन पे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. ये सब नो, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू आल्सो 2s, करेक्ट? अगर वहीं से a निकालूं तो a इज इक्वल टू हाउ मच? v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2s. ये सब नो, यहाँ से मैंने a निकाला, सेकेंड हाफ ऑफ द मोशन से भी मैंने a निकाला. दोनों a तो यूनिफॉर्म है ना, तो इसीलिए मैं बेशक दोनों को कंपेयर करके लिख सकता हूँ. आई कैन राइट कि v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2s, है ना? 2s को कैंसिल करो, एक साइड पे ले जाओ v1 स्क्वायर को, दूसरी साइड को ले जाओ vu स्क्वायर को. फिर देखो यहाँ पर 2v1 स्क्वायर हो जाएगा. अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, 2s कैंसिल हो जाएगा, ये सब नो. सो यहाँ पर मैं 2v1 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, अगर इस साइड पे आ जाएगा. Yes. Is equal to v square plus u square. u स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये सब नो. देन अगर v1 निकालो मैं, हाउ टू फाइंड v1, देन दैट इज v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2. मतलब जरूरी नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको फिर कहीं पे मिलेगा. आप अपनी जो एग्जाम्स अपियर करने जा रहे हो या फिर नीट या जेईई मेन पे इस तरह के क्वेश्चंस मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. बट इस क्वेश्चन के एप्लीकेशन की बेसिस पे और भी क्वेश्चंस बन सकता है. ठीक है, तो वहां पर हम टाइम नहीं लेंगे. मिड पॉइंट वेलोसिटी को निकालने में हम 2-3 मिनटों का टाइम नहीं लेंगे हम. ठीक, इसको हम डायरेक्टली याद रखेंगे क्वेश्चन करते करते. वहां पर नेक्स्ट सोचेंगे हम कि हाँ ये मिड पॉइंट वेलोसिटी है, तो उसकी 2 सेकंड के बाद, उसकी 2 सेकंड पहले या 3 सेकंड, जो भी है क्वेश्चन से देख के ही आपको पता चलेगा. तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट आज तक एग्जाम पे आया हुआ है, एनसीईआरटी पे है, प्रीवियस नीट जेईई मेन में पूछा गया है, अलग अलग बुक्स पे है, एचसी वर्मा पे है कि नहीं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, मतलब उतने सारे क्वेश्चंस को करने के बाद क्या होगा, एक मतलब दिमाग पे कुछ कॉन्सेप्ट पहले से बन के रहेगा. फिर उसी को ही हम अप्लाई करके उसी अप्रोच पे ही हम क्वेश्चन को अटैक करेंगे. ठीक है, जस्ट नोट इट.
student, see, let's do some questions on the basis of a Planck based questions. Okay, just write. Students, write if a bullet loses 1/nth, correct, of its velocity, 1/nth of its velocity while passing through a plank, then minimum number of such planks required. Just to stop the bullet. ठीक है, कितने planks मुझे चाहिए? Bullet loses 1/nth of the velocity while passing through a plank. Yes or no? Then the minimum number of such planks required just to stop the bullet. है कि नहीं? Students, मतलब plank है, मतलब इस तरह है plank की, ये एक plank है, correct? But इसकी जो length है ना plank की x है, मतलब x distance move करने के बाद उसकी velocity कितना हो जा रहा है? लूज कर रहा है 1/nth. ये भी एक है plank है. This is also another plank, correct? x. इस तरह कितने प्लैंक्स के थ्रू वो जाने के बाद उसका वेलोसिटी जो है ना फाइनली वो कितना हो जाएगा? इट विल बी फाइनली 0, है ना? बुलेट यहाँ पर एंटर किया, लेट द बुलेट यहाँ से एंटर किया बुलेट, करेक्ट? जब एंटर किया तो उसका वेलोसिटी u था. जब यहाँ से वो निकलेगा इस प्लैंक से तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? उसने 1/nth लूज कर दिया. 1/nth मतलब कितना लूज किया उसने, तो वेलोसिटी कितना होगा? यहाँ पर u था, उसने 1/nth of its velocity, that means u minus u/n. जब यहाँ से वो निकलेगा बुलेट, उसकी वेलोसिटी कितना रहेगा? u minus u/n. एक प्लैंक मूव करने के बाद उसका वेलोसिटी u था, 1/nth लूज किया, किसका? जितने वेलोसिटी में एंटर किया था उसने, u वेलोसिटी में एंटर किया था, उसका 1/nth मतलब u/n लूज किया, तो बचा कितना? u minus u/n, करेक्ट? और मान के चलो वो पूरा एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a पे जा रहा है, ठीक है? और मान के चलो मुझे m प्लैंक्स की जरूरत पड़ेगी. आई डोंट नो हाउ मेनी प्लैंक्स, सो लेट जस्ट राइट लेट m be the number of planks required. Let m be the number of planks required to stop the bullet. Correct? Then कितना होगा वेलोसिटी? u minus u/n. जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u स्क्वायर. इतना हुआ एक प्लांट से मूव निकलने के बाद. जब एंटर किया था तो u था, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 2 into a into x. करेक्ट? पहला इक्वेशन मिल गया हम, है ना? और स्टूडेंट्स वो एम प्लैंक मूव करने के बाद 0 हो जाएगा, मतलब 1 2 3 इस तरह एम प्लैंक जाने के बाद उसकी डिस्टेंस कितना मूव किया होगा? 1 का x एम प्लैंक इस तरह mx है, तो mx के बाद 0 हो जाएगा. मतलब मैं अगर इनिशियल और फाइनल की बात करूं, u था, यहाँ पर 0 हो गया, करेक्ट? तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 2a इनटू डिस्टेंस जो है वो mx. दैट इज सेकंड इक्वेशन, करेक्ट? ये पहला इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, है ना? तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1, राइट स्टूडेंट्स? डिवाइड इक्वेशन 2 with equation 1, correct? Right, divide equation 2 with equation 1, है ना? So students देखो इस तरह, तो 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय u माइनस u/n का होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है? दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2amx डिवाइडेड बाय 2ax, है ना? करेक्ट? 2a कैंसिल, x कैंसिल, तो m रहा. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर m इज इक्वल टू फाइनली ऊपर में कितना रहा? u स्क्वायर को नेगेटिव मतलब ले लो, u स्क्वायर
नीचे पे दिस माइनस दिस था तो उसको मैंने उल्टा कर दिया, यू स्क्वायर माइनस यू बाई एन का होल स्क्वायर, है ना। अगर सबसे मैं u कॉमन ले जाऊं, यहाँ से u, यहाँ से u, यहाँ से u, तो मुझे इतना ऊपर से u कैंसिल हो जाएगा जाके, तो 1/1 माइनस 1/n का होल स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 1/1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ पर n-1/n का होल स्क्वायर, है ना। सो दैट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखो ऊपर चला जाएगा n स्क्वायर, नीचे में कितना रहेगा n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन जब ब्रैकेट खोल देंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो n स्क्वायर कैंसिल, 2n माइनस 1, तो फाइनली नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय 2n माइनस 1, है ना, ठीक है। सो अगर हमें m निकालना होगा तो m इज इक्वल टू हाउ मच, n स्क्वायर बाय 2n माइनस 1, है ना। तो देखो सिर्फ n की जरूरत पड़ा हमें यहाँ, ना इनिशियल वेलोसिटी की, ना फाइनल वेलोसिटी की, ना प्लैंक लेंथ की। अगर मुझे कितना वेलोसिटी लूज कर रहा है पता चल जाएगा तो वही से मैं निकाल दूंगा कि कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स चाहिए। तो एग्जाम में मुझे इस डायरेक्ट फॉर्मूला की याद रखना होगा, क्योंकि इतना बड़ा डेरिवेशन अगर मैं वहां पर करके 5 मिनट वेस्ट करूंगा, सो दैट मीन्स, ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन। It's always, listen, read the question that is asked very carefully 2 to 3 times. Because while reading the question, if sometime what happens, if you face a question and you are having a pre-idea about that question, that idea sticks to your mind directly. But exactly in the question, along with that concept, some additional concept may be there. So you have to be very much particular about the question, what is being asked, and where I should be alert while attending the question. Means I will take the impression of the question that I have solved before. But the thing is that also I have to read the question once again. Like in the same question, let it is written like the velocity of a bullet, in the same question that we solved now, the velocity of a bullet, just write, becomes, स्टूडेंट वहां पर था loses 1/n, यहाँ पर लिख दिया उनसे becomes 1/n of its initial velocity, becomes 1/n of the initial velocity. So what happens for a student, for you now, because after few days your maturity level will increase in physics, but now what will happen, जो क्वेश्चन आप किए थे उसकी कॉन्सेप्ट आप लेके चलते हो, तुरंत उसी क्वेश्चन क्या दिया हुआ वो नहीं दिखते हो, आप आंसर के ऊपर चले जाते हो। नहीं, फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन 2 टाइम्स। जो एग्जाम हो रहा है उसमें आंसर करना, मार्क्स स्कोर करना वो सेकेंडरी चीज है। क्वेश्चन की माइंडसेट को समझना मतलब 50% काम आपका हो गया। बाकी तो फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, मिसकॉन्सेप्शन भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी डेवलप होगा, उसको भी क्लियर करेंगे, ठीक। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। द वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट बिकम्स 1/n of the initial velocity, while penetrating a plank, while penetrating a plank, correct. The number of such planks required, right, the number of such planks required, the number of such planks required, same question, ठीक है, to stop the bullet, to stop the bullet, है ना। फ्रेंड्स क्या डिफरेंस है, ये एक प्लैंक है, जब यहाँ पर था तो u वेलोसिटी में एंटर किया था, 1/n हो गया वेलोसिटी, मतलब निकलने के बाद वेलोसिटी कितना हो गया है, u/n, समझ पे आ रहा है ना, नॉट u माइनस u/n, हो गया 1/n टाइम्स। और डिस्टेंस जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन पे किए थे, इट इज x, पता नहीं कितने प्लैंक्स के बाद वो रुकने वाला है, बट एक टाइम आएगा जहां पर वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, करेक्ट। और पहले एक प्लान के बारे में अगर सोचेंगे a एक्सेलरेशन पे, तो मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी मतलब u माइनस u/n का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 2ax, है ना। ये पहला हो गया। m प्लैंक मूव करने के बाद मान के चलो वो रुक रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 2amx, है ना, दैट इज सेकेंड। ये सब नो, तो अभी सॉल्व कर दो दोनों को, यू सॉल्व डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यू कैन फाइंड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 you can find m is equal to how much, n square divided by
n square minus 1. Correct. m is equal to n square by n square minus 1. ऑप्शन पे ई भी होगा और वो पहला वाला ऑप्शन भी होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स इन द सेम क्वेश्चन, इसी सेम क्वेश्चन पे अगर मैंने आपको पूछा, मतलब वो इसी सेम क्वेश्चन पे अगर उसने एडिशनली इतना ऐसा दे दिया कि जो प्लांक है ना, वो प्लांक में वही u वेलोसिटी में एंटर कर रहा है, जब निकल रहा है वेलोसिटी u by n हो रहा है, और ये x, एक प्लांक मतलब एक प्लांक का लेंथ x दिया हुआ है, ठीक है। अभी उसने पूछ लिया कि हाउ मच, मतलब कितना और डिस्टेंस कवर करेगा वेलोसिटी 0 होने के लिए, ठीक है, ठीक है नहीं। इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर हाउ मच फर्दर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये और कुछ डिस्टेंस जाने के बाद तो 0 हो जाएगा ना, मान के चलो y, ये सर नो, y डिस्टेंस मूव करने के बाद लेट उसका वेलोसिटी 0 हो रहा है, ठीक है। उसने इतना केस दे दिया कि u पे जा रहा था, u by n हो रहा है x डिस्टेंस जाने के बाद, सो उसने फिर क्वेश्चन में ऐड किया it will come to rest after how much further displacement, right? It will come to rest after how much further displacement, after how much further displacement, after how much further displacement, ठीक, it will come to rest after how much further displacement, yes or no? तो इसका मतलब है मान के चलो y डिस्प्लेसमेंट के बाद वो 0 हो जाएगा, मतलब जो mx लिख रहे थे हम, अभी mx ना लिख के क्या लिखेंगे, y लिखेंगे ना, मतलब mx एक्चुअली y नहीं है, टोटल हम ले रहे थे mx, टोटल mx ले रहे थे इसको, है कि नहीं। पहले क्वेश्चन पे टोटल mx ले रहे थे इसको, mx इज इक्वल टू क्या था, x प्लस y था ना, ये सब नो स्टूडेंट्स। बट अभी इस तरह नहीं है, उसको थोड़ा अलग तरीके से डील करेंगे, कैसे कि जो पहला इक्वेशन हम बनाए थे u by n का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 2ax था ना, जो कि पहला इक्वेशन था, है ना। दूसरा इक्वेशन क्या था, फाइनल 0 स्क्वायर माइनस u by n का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay था, ये सब नो, दैट इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन, है ना, क्योंकि हमें वही y में इंटरेस्ट है, करेक्ट। अभी आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, देन आपको y आराम से मिल जाएगा, y विल बी हाउ मच, ऊपर चले जाएंगे अगर तो, सो दैट इज x by n स्क्वायर माइनस 1, जस्ट लिखो इसको, क्योंकि x दिया रहेगा क्वेश्चन पे, ये n है नंबर ऑफ, मतलब कितना नंबर ऑफ प्लैंक्स आने के बाद, ये x एक प्लैंक का डिस्टेंस दिया हुआ है, y इज इक्वल टू x by n स्क्वायर माइनस 1, जस्ट नेक्स्ट उसके बाद इसको ऐड करो। यही अप्रोच था कि वेलोसिटी u by n बन रहा है। अगर उसने इसी क्वेश्चन पे, पहला वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे, जस्ट सी, ये वाला जो क्वेश्चन पे, अगर इसी क्वेश्चन पे उसने पूछ लिया, इफ इन दिस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पे उसने ये पूछ लिया कि फर्दर कितना डिस्टेंस चाहिए इसको रोकने के लिए, समझ पा रहा ना, ये डीटो क्वेश्चन वही था, हमने निकाल दिया कि कितने प्लैंक्स चाहिए, यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया कि हाउ मेनी सर्च प्लैंक्स रिक्वायर्ड, बट उसने पूछ दिया मान के चलो कि y डिस्टेंस मूव करने के बाद फर्दर वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो बस इक्वेशन जैसा था वैसा रहेगा, यहाँ पर जो y जो लिख रहे थे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2ay लिख देंगे ना, 2ay लिखेंगे या 2ax प्लस y लिखेंगे, 2ax प्लस y लिखेंगे, क्योंकि पहले x था, उसने पूछा है कि फर्दर कितना डिस्टेंस, मतलब फर्दर डिस्टेंस इज y, सो टोटल कितना हो गया, 2a mx ना लिख के क्या लिखेंगे, x प्लस y लिखेंगे, गेटिंग और नॉट, आर गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स। इसी क्वेश्चन पे उसने ऐड कर Yes, sir. Yes, sir. इसी क्वेश्चन पे उसने ऐड कर दिया कि फर्दर कितना डिस्टेंस मूव करने के बाद बुलेट उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, जबकि हमने फर्दर कितने प्लैंक्स निकाले थे, इसलिए एक प्लैंक का लेंथ x था, m मतलब टोटल mx निकाल रहे थे, हाउ मेनी प्लैंक्स रिक्वायर्ड, इसमें हमने सारे प्लैंक्स को कंसीडर किए थे, बट एक प्लैंक जाने के बाद और कितना प्लैंक्स जाएगा और कितना डिस्टेंस कवर करेगा ताकि नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो मतलब जो इक्वेशन हमने लिखे थे, जस्ट सी, जो इक्वेशन हमने लिखे थे वहां पर, जो पहला इक्वेशन था हमारा ये था, उसी क्वेश्चन पे जो पहला इक्वेशन था हमारा ये था, कितना u था, u माइनस u बाई n का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी मान के चलो u बाई n टाइम्स डिक्रीज हो रहा था, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी वाज u माइनस u बाई n का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, हम लिखे थे ना पहला इक्वेशन, याद आ रहा है, यू कैन चेक आल्सो, यार यू कैन चेक आल्सो, आप यहाँ पर देख सकते हो, वी हैव रिटन दिस इक्वेशन, रोट और नॉट, है कि नहीं। अभी वो जो mx था, mx की जगह में क्या लिखेंगे हम,
फर्दर कितना डिस्टेंस चाहिए मुझे, ठीक है नहीं। अगर मैं पूरा डिस्टेंस की बात करूं, इफ आई विल से द टोटल डिस्टेंस देन इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यूज कर, पहले x गया था, बाकी जो नेक्स्ट जगह दैट इज y, सो दैट इज 2ax + y लिखेंगे हम, यस सर नो, दैट इज सेकंड इक्वेशन। और कुछ ट्रिक नहीं है, अभी ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो, यू विल गेट इट y = x होल इनटू n + 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाय 2n, यस सर नो, दैट इज द थिंग, जस्ट नोट इट। अगर डाउट आया तो पूछो फिर मुझे। ये दिया हुआ है कि ये बेटा एक प्लैंक है ना, तो प्लैंक का जो लेंथ है ना वो x है। जब एक बुलेट प्लैंक पे एंटर किया तो u डिस्टेंस, u वेलोसिटी में मूव किया, और जब प्लैंक को वो रिमूव कर रहा है तो लूजेस ए वेलोसिटी ऑफ 1/nth, 1/nth वेलोसिटी लूज कर रहा है। u था, u का 1/nth लूज कर रहा है, मतलब होगा कितना, u - u/n। ये तो हम किए थे पहले कॉन्सेप्ट पे, है ना। अभी वो बोल रहा है कि अभी और कितना फर्दर डिस्टेंस में मूव करेगा, मतलब y कितना मूव करेगा, तभी जाके जब बुलेट से प्लैंक निकलेगा तो वो कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो ये पहले के लिए जो एक प्लैंक के लिए हमने इक्वेशन लिख रखा है यहाँ पर, u - u/n का स्क्वायर v² - u² = 2x, बिकॉज प्लैंक लेंथ इज x, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम में क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल u था, टोटल डिस्टेंस उसको कितना मूव करेगा, फर्दर उसने डिस्टेंस पूछा है। टोटल डिस्टेंस पूछता तो हम तो mx कर देते ना, बट वो नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि फर्दर कितना डिस्टेंस मूव करने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ जो mx वहां पर लिख रहा था, यहाँ पर मैंने x + y लिखा। फिर मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दी और मुझे मिल गया y का वैल्यू। मैंने यहाँ पर प्लैंक का दो कॉन्सेप्ट बताया। पहला कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, इट लूजेस 1/nth ऑफ द वेलोसिटी। सेकेंड कॉन्सेप्ट में मैंने यहाँ पर बताया वेलोसिटी बिकम्स 1/n। u था 1/n टाइम्स हो गया u का, तो कितना हुआ u/n, बट वहां पर 1/n लूज किया मतलब हुआ कितना, u - u/n। दैट इज द डिफरेंस इन बोथ द क्वेश्चंस, ठीक है। अगर u 1/n लूज कर रहा है तो फर्दर कितना डिस्टेंस चाहिए, कितना प्लैंक्स चाहिए, दो चीज हम निकाले। सेकेंड पार्ट में हमने ये निकाले कि अगर 1/n हो रहा है तो फर्दर कितना नंबर ऑफ प्लैंक्स चाहिए, m कितना चाहिए, और यहाँ पर हमने निकाले कितना फर्दर डिस्टेंस चाहिए प्लैंक को 0 होने के लिए। दैट इज द टू थिंग्स वी हैव डन हियर। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑलरेडी जब हमने ग्राफ बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था, मैंने स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, स्पीड, करेक्ट। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, वेलोसिटी, है ना। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, एक्सीलरेशन, ये सब नो। लाइक दैट स्टूडेंट्स, हमने एरिया के बारे में भी बताया था मैंने, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, डिस्टेंस ना, yes or no. Area of velocity time graph gives me what, displacement, yes or no. Area of acceleration time graph give me what, students, velocity, correct। ये मैंने बताया था आपको अपनी आने वाले मतलब अर्ली क्लासेस में, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट को लेके मैं एक दो चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, जस्ट सी स्टूडेंट, एक एग्जांपल देखो, ए बॉस स्टार्ट्स एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से शुरू किया एक बॉस ने, u = 0 से एक बॉस ने स्टार्ट किया, ठीक है, इट ए बॉस और कार व्हाटएवर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u = 0, ठीक है। और उसने क्या किया, एक कांस्टेंट रेट अल्फा में उसने क्या किया, कुछ देर के लिए उसने मूव किया, ठीक है। कांस्टेंट रेट अल्फा मतलब एक्सेलरेट किया उसने, कुछ देर के लिए उसने अल्फा में एक्सेलरेट किया, है ना, ठीक है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन फिर नहीं रहा उसने, यस और नो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसने कुछ देर के लिए किया, फिर तुरंत उसने क्या किया, आफ्टर विच it
after which it deaccelerates, after which it deaccelerates, right? After which it deaccelerates at a constant rate beta, correct? Right. Deaccelerate at a constant rate. Deaccelerate at a constant rate beta. Yes sir. अल्फा में एक्सीलरेट किया, फिर डी एक्सीलरेट किया. कब तक किया? टू कम टू रेस्ट. टू कम टू रेस्ट. Yes sir. And if the total time elapsed is t second, right? ऐसा भी दिया हुआ है क्वेश्चन पे. If the total time elapsed, if the total time elapsed is t second, then हमें क्या क्या निकालना होगा? Then, right, maximum velocity achieved, then maximum velocity achieved, then maximum velocity achieved. Number 2 पे total distance traveled, number 2, right? Total distance traveled, minimum velocity achieved, then total distance traveled, correct. Maximum velocity achieved, total distance traveled, yes or no? And average velocity, मतलब total distance by total displacement by total time or average speed, right? Next, average velocity, ठीक है. Maximum velocity achieved, total distance traveled and average velocity. Okay, yes or no students? ये है questions. इसको हम थोड़ा ग्राफिक, Yes. बहुत सारे क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, वी हैव टू डील ग्राफिकली टू द क्वेश्चंस. मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, देखना उसी ग्राफ से सारे चीज कैसे आराम से सब हम निकाल देंगे एक एक करके, ठीक है? देखो इसी क्वेश्चन को मैं ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करूं, इफ आई रिप्रेजेंट द क्वेश्चन इन ग्राफिकली, ठीक है, देन दिस इज v, दिस इज t. यस सर स्टूडेंट, यहाँ u इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से, करेक्ट? यस सर. दिस इज a, अंडरस्टूड. दिस इज v max, है ना? क्योंकि उसने एक्सीलरेट किया अल्फा में, करेक्ट? हमें नहीं पता कितने देर के लिए एक्सीलरेट किया, मान के चलो उसने t1 टाइम के लिए एक्सीलरेट किया, मतलब यहाँ पर टाइम, ये जो यहाँ से का टाइम है t1. फिर उसने कुछ टाइम के लिए डी एक्सीलरेट किया, करेक्ट? यहाँ पर हम ले आए, डी एक्सीलरेट किया उसने कितने में? बीटा में डी एक्सीलरेट किया. और दैट टाइम वी डोंट नो हाउ मच, बट लेट द टाइम इज t2 एंड टोटल टाइम t1 प्लस t2 इज t. दिस टाइम इज t, करेक्ट? इतना ही दिया हुआ ना क्वेश्चन पे. उसने रेट से शुरू किया, अल्फा में एक्सीलरेट किया, करेक्ट? फिर उसने कुछ बीटा में डी एक्सीलरेट किया. टोटल टाइम ऑफ एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन इज t. ये जो पॉइंट है दैट इज t पॉइंट. ये जो पॉइंट है दिस इज t पॉइंट, करेक्ट? दिस पॉइंट इज t पॉइंट. तो उसने एक एक चीज पूछा है. मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे. किसी टर्म पे निकालेंगे. हमारे पास तीन चीजें, एक है अल्फा दिया हुआ है, दूसरा है बीटा जो कि दिया हुआ है, तीसरा टोटल टाइम टी दिया हुआ है. बाकी हमें कुछ नहीं दिया हुआ है. हमारे पास तीन चीजें, अल्फा, बीटा एंड टी. इन तीनों चीजों को यूज करके हम सारे निकालेंगे, ठीक है? स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस टू दिस, O to A, करेक्ट? पहला बीट क्वेश्चन की O to A, अगर मैं अल्फा निकालूं, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन A ना? अल्फा इज स्लोप ऑफ लाइन O है ना? ये सर लो. That is how much? This is velocity is v max, this is velocity time graph ना, and this time is how much? t1 ना. यहाँ पर मैंने बताया t1 टाइम है कि नहीं? समझ पे आ रहा है कि नहीं? So that means that slope is equal to how much? v max by t1, correct? Then वहां से मैं t1 निकाल सकता हूँ, that is v max by alpha, correct? सेकेंड केस पे स्टूडेंट्स, अगर बीटा की बात करूं, that is slope of line AB. यहाँ से आप देख सकते हो, this is the slope, that is slope of line AB, right? Beta is slope of line AB, correct? So that is V max by T2, yes or no? Then T2 will be how much? V max by beta, correct?
two things we got T1, we got T2. Then you know total time is T, na? That T is how much? T1 plus T2. That I can write as V max by alpha plus V max by beta. So that is equal to V max whole into 1 by alpha plus 1 by beta. Yes or no? Directly हम लिख सकते हैं alpha plus beta by alpha into beta. Yes or no? That is T. अगर हम यहाँ पर V max निकालने की कोशिश करें, उसने V max पूछा है, तो क्या कर देंगे? V max is equal to alpha beta by alpha plus beta into T. Just remember this formula. अगर कहीं पे इस तरह के क्वेश्चंस मिला तो हमें फिर से उसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको पुट कर सकते हो. Got it, students? Student, next he's asking total distance traveled. How to find the distance from a velocity time graph? Area under velocity time graph, na? If I'll find the total area, then that will give me the displacement, na? Yes or no? Displacement is what? Area under velocity time graph gives displacement or not? Yes, sir. We will find the area of this triangle, correct? So next write second bit में लिखो displacement. हमें displacement निकालना है, correct? That is area under the VT graph. That is area under VT graph. That is area under VT graph. That is area under triangle AOB. Correct? So triangle AOB का area कैसे निकालेंगे? Half base into height ना? Yes or no? And base is how much? See in the graph. Yes, sir. Total base is how much? Total base is T, na? Total time is T or not? And what is the height? Height is V max, na? Yes or no? Yes, sir. I can write half Yes, sir. T into height is V max. और अभी हमने क्या निकाले V max के बदले में? Alpha into beta by alpha plus beta into T. Yes or no? Alpha into beta by alpha plus beta into T. So that is finally displacement कितना आ गया? अगर मैं पूरा multiply कर दूं, half into alpha beta by alpha plus beta into T square. Correct? Yes or no? Yes, sir. So that is V average is equal to, that is V average is equal to total displacement. That is V average is equal to total displacement divided by total time. Total time is T, yes or no? Total time is T, total displacement is this much. फिर से एक T cancel हो जाएगा. Yes or no? Then I will get total displacement is how much? Half into alpha into beta by alpha plus beta into T, na? This is the total V average because 1 T will be cancelled. ऊपर T square लिखूंगा, नीचे T. Cancel करके T ही रहेगा ना? That is V max by 2 or not? Because V max is half, you see V max is half alpha beta. V max is alpha beta by alpha plus beta into T. Yes or no? Half raha, so that is V max by 2. So V average is equal to V max by 2. Yes or no? Just note.